तो लीजिए जी वार्म अप एक्टिविटी आपके लिए यहाँ भी है। मैच द लिस्ट जी वोकेबलरी सेक्शन में आज हमने डाले हैं मैच द लिस्ट और मैच करें जी अ मैन हु हैज़ गेस्ट्स, ऐसा आदमी जिसके पास गेस्ट्स आए। ये पहला है इसलिए तर्जुमा कर रहा हूँ, अदरवाइज आई वॉन्ट बी गोइंग टू ट्रांसलेट इट। अ मैन हु हैज़ गेस्ट्स एक ऐसा आदमी जिसके पास मेहमान आए उसे क्या कहते हैं? अ मैन हु हैज़ गेस्ट। नंबर ए ऑप्शन दैट इज फ्रेंडली और नंबर बी ऑप्शन वुड बी करेक्ट, होस्ट। जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। अ मैन हु हैज़ गेस्ट्स, फ्रेंडली, होस्ट। ऑब्वियसली जी होस्ट पर आपने टिक किया होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, बिलोंगिंग टू वंस फैमिली। बिलोंगिंग टू वंस फैमिली, फेमिलियर और रिलेशन। जी जिसका ताल्लुक आपकी फैमिली से हो क्या कहेंगे उसे, फेमिलियर या रिलेशन? होपफुली जी जवाब आपने लिख दिया। नेक्स्ट नंबर 3, अबव नॉर्मल। अबव नॉर्मल, above normal, abnormal or intelligent? What do you mean by above normal? Abnormal, intelligent, A option or B option? Obviously B option is correct. If you were thinking about B option, that is intelligent, you are correct. Written matter in a textbook is called, written matter in a textbook, that is text or print. Where you are going to take A or B. Written matter in a book, that is text or print? Text, correct. And the last one, moisture on skin. Moisture on skin, that is rain or sweat? Moisture on skin, that is A option rain and B option sweat. What's the right option? That is sweat, B option. Okay, moisture on skin is called sweat. In Urdu, that is pasina. Moisture on skin is equal to sweat, not is equal to rain. ओके जनाब, सेक्शन नंबर 2 पर आइए, जो कि बहुत ही अहम बल्कि सबसे अहम एक्टिविटी होती है इस पूरे लेसन की, और वो क्या है जी हमारे सेक्शन नंबर 1 पे, दैट इज वार्म अप एक्टिविटी। एंड नाउ दैट्स सेक्शन 1 एंड दैट्स लिसनिंग एक्टिविटी एंड आंसर द क्वेश्चंस इन द एंड। तो एट द एंड जो हम क्वेश्चन करेंगे उसका जवाब दीजिए जी। मैं शुरू कर रहा हूँ इसके पहला हिस्सा लिसनिंग एक्टिविटी का, दैट गोज लाइक दिस। Shingo, Shingo, Shingo walks through the crowd. Shingo walks through the crowd. He carries a baseball. He carries a baseball. There are many people in his way. There are many people in his way. This is a subway. The people get on the train. Each person has a ticket. Suddenly the door closes. Akiko has many sisters but only one brother. Akiko is the name of person. Akiko, A-K-I-K-O. Akiko has many sisters but only one brother. He is taller than Akiko. Means his brother is taller than Akiko. The baby wants the hat. He crawls. The baby falls. He hurts his leg and his back. Okay, ji, last line. Mother takes off the baby's shirt. It's dirty. ओके जी, लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। जो मैंने पढ़ा इसमें से सवाल हैं और अब है आपकी बारी। अभी तक आप सुन रहे थे, अब प्रोड्यूस कीजिए जी, जवाब दीजिए। पहला सवाल है, हु वॉक्स थ्रू द क्राउड? हु वॉक्स थ्रू द क्राउड? ओके जी, पुट द नेम हु वॉक्स थ्रू द क्राउड। नंबर 2, व्हाट डज ही कैरी?
What does he carry? Number 3. Are there many people in his way? Yes or no में जवाब दे सकते हैं. Are there many people in his way? Number 4. Do the people get on the subway train? Do the people get on the subway train? Number 5. Does each person have a ticket? Yes or no में आप जवाब दे सकते हैं उन सवालों के जो do, does, is, am, are यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं. Number 6. Does the door close suddenly? Does the door close suddenly? Yes or no? Does Akiko have many sisters and only one brother? Does Akiko have many sisters and only one brother? Yes or no? Number 9. What does the baby want? What does the baby want? Let me give the options. Table, feeding bottle or hat. Number 10. Does he crawl? Does he crawl? Crawl means घुटने घुटने चलना, रेंगना. Does he crawl or not? Yes or no? Next. Does he fall? Does he fall? Yes or no? Number 12. Does he hurt his leg and his back? Does he hurt his leg and his back? Yes or no? And the second last question that goes like this. Who takes off the baby's shirt? Who takes off the baby's shirt? Let me give the options. His brother, mother or father. Brother, mother or father. Who takes off the baby's shirt? And the last question. Is it dirty or not? Is it dirty? Yes or no? ओके जी, आखिरी सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ. Yes. Mother takes off the baby's shirt and it is dirty. ओके जनाब, ये एक्टिविटी थी आपकी लिसनिंग एक्टिविटी. होपफुली जी आपको अच्छी लगी होगी. अगर आपने इनमें से 8 के जवाब दुरुस्त दे दिए तो यू आर गोइंग वेरी वेल, और आप बिल्कुल आईएल्ट्स में भी टॉफल में भी बहुत उम्दा चलेंगे अगर आपकी रिटेंशन लिसनिंग की इतनी अच्छी है. आजकल किसी की ज़िंदगी ख़तरे से खाली नहीं. आजकल किसी की ज़िंदगी ख़तरे से खाली नहीं. नन इज़ सेफ दीज डेज. बहुत सादा सी, आपने जैसे पहले हमने बात की थी कि आपने उसका इडियोमेटिक एक्सप्रेशन लेना है और आपने बामुहावरा तर्जुमा करना है. अगर यूं करने बैठ गए ना, आजकल दीज डेज़ या नाउ डेज़ किसी की ज़िंदगी ख़तरे से खाली नहीं, नन्स लाइफ इज़ एम्प्टी ऑफ डेंजर, तो बड़ा रिडिक्यूलस हो जाएगा, फ़नी हो जाएगा काफ़ी, है ना, कि नाउ डेज़ नन्स लाइफ इज़ एम्प्टी ऑफ डेंजर. ऐसे नहीं करना आपने. इसका मतलब क्या है कि आजकल किसी की ज़िंदगी ख़तरे से खाली नहीं, इसका मतलब है ख़तरा है, तो नन इज़ सेफ दीज डेज़.
एंड वाला देखते हैं जो कि पहले ही मौजूद है। हमारा इम्तहान सर पर खड़ा है, आवर एग्जामिनेशन इज स्टैंडिंग ऑन आवर हेड। ऐसे बनेगा ना अगर जाएंगे लिटरल मीनिंग पर, तो इसलिए उस नॉनसेंस पर कभी मत जाइएगा कि हमने लिटरल मीनिंग को लेना है। हमारा इम्तहान सर पर खड़ा है, आवर एग्जामिनेशन इज़ एट हैंड। उर्दू में सर पर खड़ा होना मतलब यही है ना, इमिनेंट है, सर पर खड़ा है, मंडला रहा है सर पर, करीब है। एट हैंड करीब होना, सर पर खड़ा होना। तो आवर एग्जामिनेशन इज़ एट हैंड। आइए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। मरीज़ सूख कर कांटा हो गया है, द पेशेंट हैज़ बिकम अ थॉर्न। ऐसे ही करेंगे ना, कांटा हो गया है, बिकम अ थॉर्न। लेकिन नहीं जी, आपने ऐसे नहीं करना। द पेशेंट हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू स्केलेटन। द पेशेंट हैज़ बीन रिड्यूस्ड कम हो गया है, कितना कम, टू स्केलेटन ढांचा रह गया है, यानी मरीज सूख कर कांटा हो गया। द पेशेंट हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू स्केलेटन, ये है हर ज़ुबान का अपना टेस्ट, अपना मुहावरा। द पेशेंट हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू स्केलेटन। बहते दरिया में हाथ धो लीजिए। बहते दरिया में यानी हवा चल रही है तो उसी रुख को चल पड़िए। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज़ हॉट, बहुत अहम प्रोवर्ब है, बहुत अहम इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, बहुत अहम ट्रांसलेशन है, जहन में रख लीजिए। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज़ हॉट। और जब ये इस इडियम में आ रहा है तो द आयरन आ रहा है, आप इस्तेमाल करेंगे अगर आयरन के लिए, लोहे के लिए, तो आप यकीनन आयरन से पहले दा नहीं लगाएंगे। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज़ हॉट। नेक्स्ट क्या है हमारा उर्दू। मैं ऐन वक्त पर वहाँ पहुँचा। मैं ऐन वक्त का मतलब आप जानते हैं, एट द 11th आवर, इंग्लिश में इसका एक्सप्रेशन है एट द 11th आवर। आई रीच्ड, मैं पहुँचा, मैं पहुँचता हूँ तो आई रीच, ईडी हटा देंगे, सेकेंड फॉर्म पहुँचा, तो आई रीच्ड देयर एट द 11th आवर। आई रीच देयर, मैं वहाँ पहुँचा, एट द 11th आवर, एन वक्त पर, एट द 11th आवर यानी 12 आवर्स होते हैं, तो मैं आखिरी वक्त पर वहाँ पहुँचा, ये मकसद हम लेंगे। आइए जी आखिरी सेक्शन की तरफ चलिए, और जो कि है हमारा सेक्शन नंबर 3, और वो हैं फ्रेजेस फॉर टॉकिंग अबाउट टीवी के मुतालिक जो आप बात कर रहे होते हैं, उसमें इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ फ्रेजेस। वेयर इज़ द रिमोट। नंबर 1, वेयर इज़ द रिमोट यानी रिमोट कंट्रोल। तो आप सिर्फ कह सकते हैं, रिमोट का लफ्ज़ी मतलब होता है दूर। माई कज़न इज़ रिमोट फ्रॉम मी, मुझसे दूर रहता है मेरा कज़न, यानी रिमोट का लफ्सी मतलब लिटरल मीनिंग क्या लेंगे, वेयर इज़ द रिमोट यानी फासले पर होना, एट डिस्टेंस होना। लेकिन रिमोट कंट्रोल यहाँ मतलब है जी कि जो दूर से कंट्रोल करे टीवी को, वेयर इज़ द रिमोट। नंबर 2, इज़ देयर एनीथिंग गुड ऑन, क्या कोई अच्छी चीज़ चल रही है टीवी पर, तो आप बोलेंगे इज़ देयर एनीथिंग गुड ऑन। इज़ देयर एनीथिंग गुड ऑन द टीवी कहना ज़रूरी नहीं है, जस्ट ये कह दें इज़ देयर एनीथिंग गुड ऑन, अच्छा लगेगा, इज़ देयर एनीथिंग गुड ऑन। नंबर 3, कैन आई चेंज द चैनल। कैन आई चेंज द चैनल बोल सकते हैं पहले से आप, 31st लेसन है क्योंकि, कैन आई चेंज द चैनल प्लीज़, इस तरह कुछ भी बोल सकते हैं। नंबर 4, आई हैव ऑलरेडी सीन दिस एपिसोड। आई हैव ऑलरेडी सीन दिस एपिसोड, और एक नया लफ्ज़ आ रहा है नंबर 5 में, दिस इज़ अ रीरन। दिस इज़ अ रीरन, री एनेक्टमेंट यानी रीरन के ओल्ड एपिसोड जो है वो दोबारा दिखाई जा रही है, जो पहले ही दिखाई जा चुकी है। कोई भी प्रोग्राम दोबारा चल रहा हो टीवी पे तो आप कहेंगे दिस इज़ अ रीरन। या री एनेक्टमेंट ज़रा मुश्किल हो जाता है, फॉर्मल है, हम स्पोकन के हवाले से बात कर रहे हैं, तो आप कहेंगे दिस इज़ अ रीरन, यानी ये प्रोग्राम दोबारा चल रहा है, ये एपिसोड दोबारा चल रही है। सो दिस इज़ अ रीरन। नेक्स्ट जी आते हैं, इज़ देयर एनीथिंग गुड ऑन, कैन आई चेंज द चैनल, आई हैव ऑलरेडी सीन द एपिसोड, दिस इज़ अ रीरन। और अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, हमारी आखिरी स्लाइड आज की कंटिन्यूटी है पिछले ही फ्रेजेस की। 10 फ्रेजेस हम बिलमूम लेते हैं। आई लव दिस शो, आई लव दिस प्रोग्राम, आई लव दिस एपिसोड, आई लव दिस सीरीज़, कुछ भी, आई लव दिस मूवी, आई लव दिस प्ले,
Number 7, there are too many commercials. There are too many commercials. Number 8, stop channel surfing. ये भी हो सकता है नया हो तो कुछ नए लफ्ज़ आते हैं, कुछ पुराने आते हैं, उन सबको मिला के हम सीखते हैं, क्योंकि सब नई चीज़ें हों तो भी नहीं सीख सकते। हम पुरानी पैकिंग में अपने जो पुराना इल्म है उसमें नए इल्म को समेट के फिर आगे चल सकते हैं। तो नेक्स्ट है जी स्टॉप चैनल सर्फिंग। चैनल सर्फिंग मीन्स चेंजिंग द चैनल क्विकली। जब हम तेज़ी से चैनल्स को चेंज कर रहे होते हैं उसे कहते हैं चैनल सर्फिंग। एक साइट से दूसरी साइट पर भी जाना उसे साइट सर्फिंग कहते हैं। कभी हम YouTube पर वीडियो सर्फिंग करते हैं, एक से कभी दूसरी तीसरी पर जल्दी चाहते हैं, वो है चैनल सर्फिंग। तो ये है चैनल सर्फिंग। वीडियो सर्फिंग हो सकती है, साइट सर्फिंग हो सकती है। बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ आ गया आपके पास। आगे चलते हैं जी नंबर 9 पे। चेक द टीवी गाइड। चेक द टीवी गाइड। ठीक है जी, आसान है। टीवी गाइड आपको होता है जिसमें सारा स्केड्यूल होता है। और नंबर 10 पर है इट्स द सीज़न फाइनल। इट्स द सीज़न फाइनल। ठीक है जी, फाइनल बोल सकते हैं, फिनाले बोल सकते हैं, आपको जो पसंद हो दोनों ठीक हैं जी। द फाइनल एपिसोड ऑफ द सीज़न को कहते हैं जी। और आपने सुन रखे हैं ग्रैंड फिनाले एटसेट्रा लाइक दैट, जो सीजन्स का होता है, जो आखिरी सेशन उसको कहते हैं जी फिनाले। तो यहाँ तक जी कोई बात हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग हियर। थैंक यू। वी विल बी मीटिंग टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।